All right, we'll see the homework first, then we'll see the new topics. So we were discussing the relation between potential difference and electric field. So we know electric field is given by potential gradient, dV by dx. एंड अगर पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है। तो बेस्ड ऑन दैट we did this question, first part. Now second part, V1 is given, V1 is here, here is the 100 volt and यहाँ पे निकालना है V2 और field is 10 SI unit and distance is 200 centimeter. This will be 2 meters. Some of you taken 200 centimeter only. 200 is not converted into meter, therefore big answer was coming something in 1000. You have to convert it into meter. Now V2 minus V1 क्या है फार्मूला, ये सामने आ गया है फार्मूला, है ना। तो ये बना लिया था हमने फर्स्ट पार्ट में। All right, so V2 is to be calculated. V1 is 100, E is 10, distance is 2. So this is minus 20 plus 100. So this is 80 volt. Most of you have done it correctly, but some of you have done mistake in this. So 80 volt है देखो, it is decreasing in the direction of field. यहाँ पर 100 है, it is 80. Reduce होगी when you move in the direction of field. All right. Now, इसमें देखो, so many of you have done mistake. Some of you have done it right, but 50% of you have done it wrong. यहाँ पर देखो, B is happen to be on this line, and whose angle is not changing. है ना? So all the points will have same potential on this line if angle doesn't change. Corresponding to point P, X is 1, X1 is 1, and V1 is 10 volt, and corresponding to Q, X2 is 3, and this is remaining 10. When we put the value in the formula V2 minus V1 upon X2 minus X1, ये V2 minus V1 अलग है भाई, ये यहाँ पर you cannot do it, यहाँ ये माइनस इसके साथ नहीं ले सकते, यहाँ लेंगे तो ये प्लस हो जाएगा. Some of you have taken minus 10, minus 10, minus 20. ऐसा नहीं है, ये माइनस यहाँ पर है. This is in the bracket. If you shift the minus to both the places, in numerator, तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा. तो be careful in calculation. You cannot just do that mistakes. यहाँ पर देखो, V2 is 10, V1 is 10, और नीचे 3 माइनस, तो ऊपर 0 हो गया, तो complete thing is 0. Complete thing is 0. 0 is the right answer, but many of you have not got the 0. It means you are not able to read the graph properly. ठीक है? Even if you have read it correctly, यहाँ पे mistake हो गई. This is minus, this is also minus you have taken. Be careful in calculations. All right? तो इसका slope भी 0 है. Slope gives the, देखो ये जो होता है ना, ये quantity, this is on y axis, this is on x axis. तो ये ऐसे होता है. This is slope, this is tan theta. Slope में दोनों quantity divide की जाती है. तो slope अगर okay, somebody ask you one question more, we can make it. What is question is, what is slope of
potential and position graph. This is the question. The potential इधर है, position इधर है ना? क्या आंसर होगा? स्लोप विल बी इलेक्ट्रिक फील्ड, नेगेटिव ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. क्या आंसर आएगा? नेगेटिव ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. सॉल्यूशन करेंगे तो ये सिंस E is equal to minus dV by dx, so therefore dV by dx is equal to minus C. This is the slope. Therefore slope is negative of electric field there. Electric field intensity there. तो नेगेटिव माइनस भी लगाना है. इसका स्लोप तो 0 है. हॉरिजॉन्टल लाइन का स्लोप 0 होता है. Therefore it is answer is coming 0 and solve भी किया हम लोगों ने फार्मूले से. Now इसका स्लोप नेगेटिव है तो नेगेटिव और ये भी नेगेटिव, तो नेगेटिव नेगेटिव विल मेक इट पॉजिटिव. यहाँ पे देखो ये नेगेटिव और स्लोप भी नेगेटिव, तो पॉजिटिव आंसर आना चाहिए सी पे. नाउ सी हैपन टू बी ऑन दिस लाइन whose angle is not changing, therefore slope is not changing. All the points on this line will have same field. तो यहाँ से लेकर यहाँ तक फिर से निकालेंगे हम इसमें. इसकी रीडिंग में देखो एट पॉइंट सी. ओके पॉइंट सी पे देखते हैं. सी पर x1 कितना होगा? ये पहला पॉइंट. अगेन वी हैव टू टेक द होल लाइन, बीच में नहीं ले सकते बिकॉज ये अगर 4 है यहाँ पे हमें पता नहीं है. Therefore we have to take the highest and lowest point. ये x1 हो जाएगा. Corresponding to that potential will be 10. So x1 is 3, v1 is 10, and second point last point लेंगे x2 is 0. ये 5 है यहाँ पर, and v2 will be 0. Correspond because it's touching the x. यहाँ से देखो put the perpendicular on potential axis, यहाँ पे 0 है. फिर से वही फार्मूला EC is equal to minus V2 bracket पे V2 minus V1 x2 minus x1, तो minus will remain as it is. V2 coming into with 0. This is 10 and this is 5. This is 3. ऊपर minus 10 और एक माइनस बाहर भी है, 10/2 प्लस हो जाएगा 5 volt per meter. Some of you are done it right, some of you are done it minus 5 volt. इसका मतलब ग्राफ में रीडिंग में प्रॉब्लम चालू है तुम लोग. ठीक है, गॉट इट. नो डाउट. Sir, यस sir, x2 will be 4 now because we are X2 counting from 0. तो 4 तो है लेकिन यू डोंट नो. अच्छा x2 विल बी, अरे डिफरेंस है ना ये यहाँ से यहाँ तक का है, तो ये पोटेंशियल डिफरेंस तो इतना आ गया 10 minus 0, और डिस्टेंस भी फिर यहाँ से यहाँ तक की होगी 5 है और यहाँ तक 3 है, तो ये डिस्टेंस चाहिए ना. दिस इज डेल्टा एक्स, दिस इज डेल्टा वाई. डेल्टा वाई की जगह भी है, ऐसे है कि नहीं? आर यू गेटिंग इट और नॉट? डेल्टा है, इट इज चेंज, इट इज Yes, नॉट sir. एक्स. वाई बाई एक्स नहीं. वाई बाई एक्स होता तो वाई पूरा 10 ले लिया, एक्स पूरा लेना पड़ता फिर ये 5, बट इट इज डेल्टा. यहाँ पे जो ना डेल्टा मीन्स डिफरेंस. ये डिफरेंस हो गया इधर यहाँ तक का, और ये डिफरेंस हो गया, ये डेल्टा एक्स, ये डेल्टा वी हो गया. समझे? Yes, sir. हाँ ये भी मिस्टेक है. आई हैव सीन सम ऑफ यू आर पुटिंग इट 4. यहाँ पे नीचे 4 है किसी का, किसी ने शायद 5, 4 लिया है सब, फ्यू ऑफ यू. तो 4 इज नॉट द, इट इज नॉट द y by x, इट इज नॉट द
v by x ऐसा डिफरेंस से when टू पोजिशंस के बीच का वो है 4. अगर हमें सपोज इफ वी हैव गॉट यहाँ पर अगर हमने 4 ये हमें वोल्टेज मिला भी होता है देन आल्सो वी कैन फाइंड आउट वी कैन से कि एट पॉइंट सी हमने देन वी कुड हैव फाउंड आउट सी पर निकलना है क्या था हाँ एट सी ठीक है देन वी कैन डिवाइड बट देन आल्सो इट वाज नॉट लॉजिकल अगर हम ये यहाँ पे कुछ मिलता बट वी आर सीइंग इट इज डिफरेंस ऑफ 2 पॉइंट्स किसी 2 पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा ओके हाँ तो डिफरेंस से हमें इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगी है ना तो यहाँ पे एक पॉइंट तो ये रहेगा दूसरा फिर हम ये ले सकते हैं इतना अगर सी का हमें मिला तो डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल divided by that 2 positions can give us the field. All right. Not with the single point. Huh? सिंगल पॉइंट से भी स्लोप मिल सकता है लेकिन हमें एंगल देखना पड़ेगा फिर ये एंगल मिल जाए हमें जैसे ये सपोज कर्व इज ओके yeah now direct angle is given then also we can find out field angle is nothing but a slope suppose ये 30 डिग्री दे दें तो स्लोप इज 10 थीटा 10 30 हो जाएगा तो -1/√3 आ जाएगा डन ओके इसमें भी मोस्ट ऑफ यू आर डन इट रॉन्ग एक्सेप्ट वन ओनली रोनेन है और तुमने ये वाला मिस्टेक कर दी थी इसमें सेंटीमीटर में नहीं चेंज किया था पिछला क्वेश्चन दिस इज आई थिंक यू आर डन इट रॉन्ग विल सी मैच द आंसर देखो कल मैंने थोड़ी सी हिंट दी थी तुम लोगों को एट द एंड वी हैव टू टेक द वेरिएबल कंडीशंस है ना वेरिएबल कंडीशन में इंटीग्रेशन होता कि नहीं फील्ड क्या है देखो ड्यू टू लॉन्ग लाइन चार्ज field is kq by r if r goes up field goes down if r increases that means if you move away from the wire field will come down inverse relation hai it means variable condition it is not constant therefore same formula तो वेरिएबल कंडीशन के लिए हम ऐसे लिखेंगे dv तो dv is equal to minus edr इंटीग्रेशन ये v1 v2 हो गया तो dv का इंटीग्रेशन आएगा 1 और लिमिट लगा देंगे तो लेफ्ट साइड में v2 माइनस v1 हो गया राइट साइड में कहां से कहां तक है r1 से r2 तक है पुट द वैल्यू ऑफ e यहीं पे पुट कर देते पहले टू r2 के क्यू को बाहर निकाल लो टेल मी 1/r dr का इंटीग्रेशन क्या होगा r के टर्म्स में कर दिया वी कुड हैव रिटन x1 x2 आल्सो तो यहाँ पे dx ले लेते हैं बट सिंस इट इज गिवन r तो हमने भी अपना सिंबल r की जगह x की जगह r कर दिया बोथ सिंबल शुड मैच नाउ व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ दिस टर्म वन बाय आर का इंटीग्रेशन 1/x का इंटीग्रेशन log x तो 1/r का log r अपर लिमिट इज r2 लोअर लिमिट इज r1 दिस विल बी log को हमने ln लिखते नेचुरल log r2/r1 since 1/x dx is ln x
अपर लिमिट यहाँ आ जाती है, लोअर लिमिट यहाँ। दिस इज द आंसर। तो दिस इज, देखो ये टर्म पॉजिटिव रहने वाला, R2 इज ग्रेटर, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, माइनस आया। माइनस क्यों आया? V2 will be at lower potential because it is away from the charge, positive charge से दूर है। V1 will be at higher potential, इसलिए यहाँ पे माइनस आना। Got it? Most of you have done it wrong because these are the variable conditions, so we have to use the integration. Sir, Yes. sir, we can take E in terms of surface charge density also. Surface charge density, अच्छा okay, यहाँ पे मिस्टेक, not surface charge density, it is linear charge density। यहाँ पे लैम्डा होना चाहिए, Q के टर्म में नहीं लिख सकते हम, लैम्डा दिया है ना, it is the, I have written it Q by mistake, it should, यहाँ पे देखो लैम्डा है ना, एक्चुअल फार्मूले में लैम्डा है ना, लीनियर चार्ज डेंसिटी नॉट, यहाँ पर, यहाँ भी आ जाएगा, क्यों नहीं आएगा, लैम्डा आएगा, लैम्डा पॉजिटिव गिवन है, इट इज पॉजिटिव गिवन, Q will also be positive, lambda will also be positive. Thank you. ठीक है, then everywhere change, सर 2 Yeah. भी आएगा उसको सर, कहाँ गया 2? 2 के लैम्डा। ओहो, what is happening today? माइनस यहाँ पे 2 के लैम्डा, के की वैल्यू पुट कर सकते हैं 1/4 or you can leave it like this. Generally it is written full, it is not proper way to write to k, तो इसलिए 1/4 2 कैंसिल हो जाएगा, तो 1/2πε0 लैम्डा ln R2 by R1, ठीक। All right, variable conditions we have to, in fact this was the question asked in board examination, generally they avoid integration and differentiation, but this much you know, 1 by x का log x, x to the power n का x to the power n plus 1 by n plus 1, sin x का आना चाहिए, cos x का आना चाहिए, है ना, तो ये 4-5 e to the power x का आना चाहिए, these 5 integration you should remember. It is given in an NCERT book, you have to just refer there, 11th book. Something is wrong. Okay, all right. The problem is there. Are you there? Yes, sir. Yes. Okay. Sound की थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही, we will wait. Okay. देखो ये, इसमें डायरेक्शन ऑफ फील्ड इज इजी, पहला पार्ट इज क्वाइट इजी, डायरेक्शन ऑफ फील्ड will be towards right. Why? Because फील्ड की डायरेक्शन में पोटेंशियल कम होता है, तो ये 90 है, 80 है, 70 है, 60 है, 40, डिक्रीजिंग है ना, तो फील्ड हैज टू बी टुवर्ड्स राइटवर्ड। Now second part के लिए, what is the second part? For each path is the work done पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। चलो ये डिस्कस करते हैं। इसमें देखो, लेट अस टेक द फार्मूला फर्स्ट, पहले फार्मूला समझते हैं। वर्क डन, ओके, लेट मी हैव, यहाँ पे मैं थोड़ा सा लेता हूँ, देन आई विल रब इट ऑफ। वर्क डन V2 minus V1 is equal to work done
by external source upon charge. So work done is V2 minus V1 into Q. ये पढ़ा था हमने इस चैप्टर में, बिगनिंग ऑफ दिस चैप्टर. यहाँ पे हमने B लिखा था, VB, सॉरी यहाँ पे B लिखा था और ये A था. B was the second point, A was the first point. We can write it 2 and 1 also. So final point का position, initial point का position, work done by external source upon charge. तो work done positive, work done पॉजिटिव या नेगेटिव किस पे डिपेंड करेगा? पॉजिटिव वर्क कब होगा? व्हेन V2 इज ग्रेटर. ओके, टेल मी व्हेन विल बी द पॉजिटिव वर्क क्विकली. व्हेन विल बी द पॉजिटिव वर्क? when व्हेन V2 फाइनल पोटेंशियल इज, फाइनल पोजीशन का पोटेंशियल ज्यादा हो. एनीथिंग एल्स? एनीथिंग एल्स? दिस इज इनफ टू कंक्लूड. Q is also the deciding factor. अगर Q नेगेटिव है, that will also make it minus, है ना? But multiplied by Q, if it is negative, will make it negative. ये दोनों फैक्टर will decide करेंगे, ये और ये. तो देखते पहला इसमें देखो, चार्ज है Q की जगह. ओके, Q is माइनस ई ले लेंगे, नेगेटिव है ना, गिवन. ठीक है, तो ये फार्मूला चला शिफ्टेड हियर. ओके चलो ठीक है, यहाँ पे शिफ्ट कर दो. ठीक है, नाउ वन बाय वन यू कैन फाइंड आउट. नाउ फर्स्ट केस, केस 1. अभी V2, ओके, V2 इज फाइनल पोजीशन कहाँ पर? देखो यहाँ से चले, फाइनल पोजीशन कहाँ पर है? 70 पर. तो 70 माइनस, ओके एक मिनट, 1, since we have this formula, therefore we have this formula. तो वर्क डन निकालना है ना. 70 माइनस 80, यहाँ से ए फर्स्ट पोजीशन इज 80. इनटू माइनस सी. वैल्यू नहीं पूरी, हमें केवल पॉजिटिव नेगेटिव ही निकालना है. तो फुल चार्ज की वैल्यू नहीं पुट करें. ये कितना आ रहा है? प्लस 10E पॉजिटिव. ठीक है, could you get the clue? You have to remember the proper formula and then proper signs. यहाँ पे देखो इलेक्ट्रॉन दिया है ना, कहाँ गया? इलेक्ट्रॉन को शिफ्ट कर रहे, वी आर शिफ्टिंग इट, शिफ्टिंग द इलेक्ट्रॉन है ना. इसलिए माइनस लेना पड़ेगा उसका चार्ज. Can you do the other parts? Shall I leave it here? Now you solve it and send. Potential energy भी पूछ सकते थे. This is also the potential energy. Potential energy किसकी पॉजिटिव होगी, किसकी नेगेटिव होगी? वैलिड लिख दो, वैलिड फॉर पोटेंशियल एनर्जी. Since also valid for potential energy, also valid for potential energy. Since work done is potential energy, converts into potential energy. So can you try now and send it to me for remaining parts? Now you can arrange the sequence. है ना? After getting the clue, you can arrange it now. कौन कौन सा पार्ट, ओके, कौन कौन सा पॉजिटिव है, नेगेटिव है, जीरो है, उसके बाद अरेंज करना है सीक्वेंस. So now remaining job you can do it. So I am leaving it here and we'll match the answer tomorrow after you send it. Okay, then further moving further.
ओके देखो, next question is this: find potential due to uniformly charged shell having charge q, radius r, and surface charge density sigma. इसमें sigma आएगा surface charge density. So we can have the 2 points, one outside and surface, and then inside कहीं पर anywhere. Outside surface comes to be outside. Surface में क्या होगा? ये r को capital R से replace कर देंगे. Let capital R is the radius of the shell. Okay. And small r is the distance from the center. So how to do it? बोलो. अच्छा, इससे पहले एक और पॉइंट बता देता हूँ. चलो, since dv is equal to minus EDRL, अलर्ट. अभी बहुत सारे क्वेश्चन किए हमने. इसमें तो हो जाएगा V2 minus V1. ठीक है. V1 अब हमें पोटेंशियल चाहिए, तो V1 कहाँ पर होता है? इनफाइनाइट पर. इनफाइनाइट से हम आते हैं फिर इसमें पॉइंट पर, पॉइंट P पर. V1 इज एट इंफिनिटी, वहां पे 0 रहेगा, और V2 विल बी V. तो V2 इज V इंफिनिटिव से R पोजिशन. सपोज पॉइंट P इज एट R डिस्टेंस, या कहीं से R डिस्टेंस पर है, तो ये EDR. तो सेम फार्मूला ऐसा बन गया. पोटेंशियल निकालना है माइनस इंफिनिटिव टू R EDR. ठीक है. दिस इज द वन सेम रिलेशन चेंज स्लाइटली. लिख देंगे फिर, है ना. ये फार्मूले में वैल्यू लिख देंगे. तो ये यहाँ पे लिख देता हूँ. एट इंफिनिटी V1 is 0, at R V2 is V. यहाँ पे हमने R1 लिखा था, याद है? अभी थोड़ी देर पहले R2 लिखा था. R1 कहाँ पर है? इंफिनिटी पर है, तो वहां पे पोटेंशियल 0 हो गया. R2 कहाँ पर है? R पोजिशन पे हम निकालने जा रहे हैं इसमें, तो वहां पे पोटेंशियल V ले लेंगे हम, तो V2 की जगह V लिख देंगे. ये फार्मूला बना लिया हमने. इसको भी लिख लेते हैं हम. ऊपर हेडिंग क्या लिखेंगे? इसका हेडिंग क्या लिखेंगे? रिलेशन ऑफ पोटेंशियल, रिलेशन बिटवीन रिलेशन फॉर पोटेंशियल, रिलेशन फॉर पोटेंशियल. पहले वो पोटेंशियल डिफरेंस ही चल रहा था सब, है ना. रिलेशन फॉर V इन टर्म्स ऑफ E. पीछे जितने पढ़े थे ना, देवर ऑल पोटेंशियल डिफरेंस, है ना. तो ये एक फार्मूला बन गया अपना. अगर ये नहीं आता था कोई प्रॉब्लम नहीं, इसको यही से स्टार्ट कर सकते हैं. बाद में लिमिट लगा देंगे. यहाँ पे देखो ऐसा, एक मिनट, यहाँ से ऐसे कर सकते हैं. यहाँ पे जब इनफाइनाइट पे लिखेंगे ये 0 पोटेंशियल हो जाएगा, और जब हम लिखेंगे हमें निकलना है R पर, तो ये V हो जाएगा. ऐसे भी लिख सकते हैं. इफ यू डोंट वांट टू ब्रेक योर हेड, यू कैन राइट इट लाइक दिस आल्सो. ज्यादा याद नहीं रखना. ओके, जस्ट इफ यू रिटन डोंट कट इट, और आई एम मेकिंग यू सिंपल फॉर यू. देखो देखो, since
dv is equal to minus e dr, इधर भी इंटीग्रेशन लगा लो, इधर भी लगा लो। इनफाइनाइट पे पोटेंशियल 0 होता है और r डिस्टेंस पे हमें निकलना है तो v होता है, ठीक है, बस। तो लेफ्ट साइड में v आ जाएगा। ऑलराइट, तो दिस इज द रिलेशन फॉर v। तो बस यही लगेगा इसमें फॉर्मूला। In fact, this we are taking it as a question. NCERT book में derivation नहीं है, but इसकी numericals they are given direct numericals. तो direct numericals करने के लिए we should know the formula first, है ना? तो formula तो of course point charge जैसे ही formula आएगा, you don't have to do anything extra, KQ by R आने वाला है, because charged shell के लिए field का formula भी point charge जैसा आया था, potential भी वैसा ही आना चाहिए। तो लेट्स सी, इस पे हमने सिग्मा ले लिया, चार्ज डेंसिटी, और चार्ज भी ले सकते हैं, चार्ज इज क्यू, और सिग्मा हम निकाल सकते हैं इसका। रुको एक मिनट, चार्ज हम लोगों ने क्यू लिया इसमें, सिग्मा बाद में निकालेंगे। तो फार्मूला जो है, अभी हमने ऊपर जो फार्मूला बनाया है उसको लिखा भी, जस्ट वी रिटन हियर, कैन यू सी? ऑलराइट, तो ये फार्मूला हमने बना लिया ऊपर, ये वाला। थोड़ा इसको बड़ा कर देते हैं, लेट मी मेक इट स्लाइटली बिगर। कैन यू सी इट प्रॉपर्ली नाउ? तो ये फार्मूला है, E की वैल्यू, चार्ज शेल की फील्ड कितनी होती है, KQ by R स्क्वायर, सेम एज द पॉइंट चार्ज। E की वैल्यू पुट कर दी और dr हियर। नाउ कांस्टेंट हैज बीन टेकन आउट, माइनस ऑलरेडी रहता बाहर, KQ, और ये तुम्हारा R को न्यूमरेटर में भेज दिया। इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, पावर बढ़ जाएगी और नीचे भी वही आएगा। तो -2 + 1 विल मेक इट -1 अपॉन -1। तो R टू द पावर -1 है, तो ये आप ऐसे आ जाएगा नीचे। कैन यू सी इट? बहुत छोटा हो गया। तो इट इज नथिंग बट ए -KQ, और ये इंटीग्रेशन के बाद ये आ जाएगा। तो दिस कम्स टू बी KQ by R। K की वैल्यू पुट कर सकते हैं अभी, KQ by R आ गया है, K की वैल्यू 1/4πε0। और सरफेस पर यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग, ये डेरिवेशन भी कोर्स में नहीं है, यू कैन जस्ट skip this, but you should know how do we get this all, because sometimes, okay, the same as that of point charge, KQ by R। और surface पर, on surface small r will be equal to capital R, that's the radius of the shell। तो ये आ जाएगा, R की जगह कैपिटल R हो जाएगा, ठीक है। तो आउटसाइड के लिए पॉइंट चार्ज जैसा, और सिग्मा के टर्म में कन्वर्ट करना है तो सिग्मा कितना होगा बोलो, Q कितना होगा, Q will be how much will be the Q, since Q is sigma into sigma यूनिट 1 मीटर स्क्वायर के लिए, तो शेल का सरफेस एरिया कितना होगा, 4πr²। Therefore Q is sigma, that is for charge on 1 meter square, तो 4πr² से मल्टीप्लाई किया, that is the charge on the shell। तो ये वैल्यू पुट कर दो यहाँ पर, पुट इट हियर, ये यहाँ पे आ गई, देखो ये यहाँ पे पुट कर दिया हमने Q की वैल्यू। R goes, 4π also goes, ठीक है। तो कितना आ रहा है ये, 4π also goes, R also goes, तो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, एक R ऊपर बचेगा, सिग्मा इंटू R अपॉन एप्सिलॉन नॉट।
और यहाँ पे जब लिखेंगे तब तब ओनली 4 पाई विल गेट कैंसल। ऊपर तुम्हारा सिग्मा इंटू आर स्क्वायर आएगा और नीचे एप्सिलॉन नॉट इंटू आर आएगा। So you can make the changes whenever required. Just a minute. I'll show you. So derivation is not there in the book. Therefore, we are taking it as in the form of question, application of this electric field and relation between E and V. So as a question, it can be asked, otherwise it is not there in book. But numericals are there. Numericals are also not different. They are as a point charge का जो formula है उसी से कर सकते हैं. Only thing, new thing is what, if sigma is given, तब तुमको change करना पड़ेगा, यही फार्मूले को चेंज करना पड़ेगा, है ना. Sigma q is nothing but a sigma into 4 pi r square for a spherical body. Sigma here is the surface charge density. No problem. Now interesting result is there inside. Inside देखते क्या है? That is very important for numericals point of view. Again, there is no derivation in our book, but we have to have that relation in order to convince you. Otherwise, you are never convinced if I write direct. देखो, can you try how to get the what is called potential inside at any point? Any point. Suppose हमने, okay, let us make the diagram. Let's do it. Suppose we take the 2 point, एक surface पे ले लेते हैं, वहां पे पोटेंशियल Vs होगा, एक अंदर कहीं पे ले लेते हैं. Inside any point, it is, let us see, is it same in at all the points are different at different. तो हमने कोई point ले लिया, यहाँ पे ले लो. I am not taking at center, और एक point surface पे ले लिया. Let potential on the surface is Vs, और यहाँ पे हमें potential inside, alright, potential inside निकालना है at any point. Does the distance matter? I don't know. Distance will not matter at the end, इसीलिए मैंने नहीं. So again, writing the formula, same formula, which one? Delta V वाला. Okay. So we know dV is equal to, अभी बहुत सारे numerical किए हमने. So by that time you should remember now. dV क्या है formula? EDR है ना. Integrating both sides. Now यहाँ पे थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा. सरफेस वाला अभी हम इनफाइनाइट से नहीं है. वी कैन नॉट कम फ्रॉम इनफाइनाइट. बीच में सरफेस पड़ गई, सरफेस पे कुछ और पोटेंशियल है ना. और फील्ड आउटसाइड इज हाउ मच, के क्यू बाई आर स्क्वायर. इनसाइड इज जीरो. फील्ड इनसाइड इज जीरो. डू यू रिमेम्बर? शेल के अंदर फील्ड, गॉसेस लॉ से हमने प्रूव किया था, चार्ज शेल के अंदर फील्ड वाज जीरो. Now there is discontinuity. We cannot have from infinity पे v1 लिखा और r पर v, ऐसा नहीं. बीच में सरफेस आ गई तो we have to take surface into account. वहां का पोटेंशियल हमें पता है. Now we know the potential.
और यहाँ से यहाँ तक field remaining same. We cannot enter from we cannot come from infinitive to the inside directly, outside field being non-zero, inside field being zero. So there is discontinuity in the field. So we cannot come from infinitive to that point. We have to change our things. Surface पे हमें पता है, know the surface पे field कितनी होती है ना. So we have to come from surface to here. यहाँ से यहाँ तक आए चार्ज को लेके. तो पोटेंशियल सरफेस पे Vs है और फील्ड वहां पर, और फील्ड जस्ट इनसाइड द सरफेस यहाँ पर लेंगे हम. फील्ड को हम, और ये तुम्हारा कहाँ पे V इनसाइड निकालना है, ठीक है. V इनसाइड देखो सरफेस से नहीं आ रहा है, Sir, voice is not audible. Yes, sir.
Students, no one is able to see the screen. The sir is not audible. Okay, wait, I will contact sir. Beta sir is rejoining. Don't worry for it. Am I audible? Yes, sir. Okay. Yes, sir. Sir is joining again. Tejas. तेजस यस सर। तेजस मेरे नाम पे क्लिक करो और मेक होस्ट करिए। Can you hear me now? Yes sir, you are audible. Okay, just give me the Tejas, just make me host. Sir, I am shifting. I am giving you permission, sir. He has made me. Okay. Sir, gave you permission, sir. You can start. Okay. So you can inform them if you are extending the class. Okay. There is no chemistry class today. I will extend it for 20 minutes. Children, can you hear me? Can you hear me now? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay. यस सर। Yes, I will sir. continue for Yes, sir. 20 more minutes. यस सर। देखो कहाँ पर पहुंच गए थे? ये हो गया था पोटेंशियल इनसाइड। नो सर, वही कर रहे थे। देखो इनसाइड के लिए क्या करेंगे? ओके, अगेन देयर इज द प्रॉब्लम है ना, जस्ट अ मिनट।
hold on. Okay. देखो this well done up to here. Yes, Yes, sir. sir. Yes, देखो sir. इनसाइड के लिए फिर से वही फार्मूला लिखा हम लोगों ने. We have written the formula dv is equal to, अच्छा माइनस छूट गया ना यहाँ पर, माइनस ई डी आर, ठीक है, और इंटीग्रेशन कर देंगे इसको. तो यहाँ पर I was telling कि we cannot come from infinitive to point inside directly because outside field is inversely proportional to r square, और surface per field जो है it is there but inside field is not there. So we have to select 2 points where discontinuity should not be there. अगर हम यहाँ infinite से आएंगे तो field is there और field is not here. तो इसलिए यहाँ से start करेंगे, just surface के inside से start करेंगे, है ना. तो जितना पोटेंशियल सरफेस पर होगा, वी कैन से जस्ट स्टार्टिंग फ्रॉम सरफेस, तो वहां से स्टार्ट किया और अंदर इनसाइड पर आ गए कहीं किसी पॉइंट पर, एनी पॉइंट डजंट मैटर वेयर इट इज लोकेटेड इंक्लूडिंग सेंटर आल्सो. तो यहाँ पर सरफेस पर वीएस है और इनसाइड इज वीएन और ये डीवी, और इनसाइड पोटेंशियल इज वी इनसाइड एंड बट फील्ड इज जीरो. तो राइट साइड में पूरा जीरो हो जाएगा, ये minus or plus is not going to make any difference since E is zero inside. And since E is zero inside, ठीक है, तो राइट साइड में जीरो हो गया, तो V पोटेंशियल इनसाइड इसको इधर शिफ्ट कर देंगे, is equal to potential on the surface. So inside at all the points, potential is equal to the potential on the surface, which is equal to 1/4 pi epsilon naught q by r. ये डेरिवेशन किया देखो ऊपर से, सरफेस का स्मॉल आर को कैपिटल आर कर दिया तो सरफेस का मिल गया हमें. क्या कंक्लूजन लिखा हमने, v is constant everywhere inside the shell and it is equal to that on the surface. This is very important. तो अंदर जो है सभी पॉइंट्स पे इंक्लूडिंग सेंटर, पोटेंशियल कितना रहेगा जितना सरफेस पर है, वी असिस्टेंट पर सरफेस. सपोज सरफेस पे 10 वोल्ट है तो सेंटर में भी 10 वोल्ट रहेगा और मिडवे पे भी 10 वोल्ट रहेगा, यहाँ कहीं पे नियर टू द सर्कमफ्रेंस आल्सो 10 वोल्ट रहेगा, एवरीवेयर. ठीक है, कांस्टेंट रहने वाला है, कितना रहने वाला है जितना सरफेस पर है. तो वी कैन सी V इज जीरो बट पोटेंशियल इनसाइड इज नॉट जीरो. तो ऐसा हो सकता है कि कहीं पर E इज जीरो, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, पोटेंशियल नॉन जीरो है एंड वाइस वर्सा आल्सो. So you don't have to remember anything extra in this topic. Even derivation also you can skip. They are not given in NCERT book. But to convince you how it is same, whatever is there on the surface, same is at center, same is everywhere inside. है ना? Because you every time ask me, sir, center में कैसे equal to surface हुआ? Center में तो zero होना चाहिए, but it is not that. So we have proved it. कि center में जितना है inside everywhere उतना ही जितना सरफेस पर है. ठीक है, तो ये पॉइंट चार्ज जैसा ही फार्मूला है, के क्यू बाई आर पॉइंट चार्ज का ही फील्ड का फार्मूला है. यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग एक्स्ट्रा, बस ओनली थिंग यू हैव टू रिमेंबर इनसाइड इट इज सेम व्हिच इज ऑन द सरफेस. सरफेस पे के क्यू बाई कैपिटल आ रहा है. ऑलराइट, तो ये दो रिजल्ट डन करने हैं. डेरिवेशन यू कैन जस्ट, इट्स अप टू यू. They are not given in NCERT book. Direct questions are given. ये इसका और इसका.
ठीक है, तो शेल कैन बी कंडक्टिंग और नॉन कंडक्टिंग दोनों हो सकता है। थिन शेल होना चाहिए, इट शुड बी थिन शेल है ना। कंडक्टिंग है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, थिक भी हो सकता है थोड़ा बहुत, बिकॉज पोटेंशियल जो है सेम रहता है सरफेस पे जितना है, थोड़ा हमने थोड़ा अंदर से पॉइंट स्टार्ट किया है ना। If one radius is given, it means it is thin shell. Only R is capital R is given, it has to be thin shell. इसका ग्राफ ड्रा करना है, यू हैव टू ड्रॉ द ग्राफ होमवर्क में। ड्रॉ द ग्राफ V वर्सेस S, V वर्सेस R, S नहीं है। V the potential of the shell inside and outside, सबका ड्रॉ करना है। राइट फ्रॉम द सेंटर 0, यहाँ से स्टार्ट करके अंदर से लेकर बाहर तक, वर्सेस R, R इज द डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर, सेंटर से डिस्टेंस है तो सेंटर से पोटेंशियल स्टार्ट करना पड़ेगा तुम्हें। Shell can be conducting also and non-conducting also. दोनों, shell can be conducting, non-conducting both. ठीक है, this is the homework problem and यहाँ तक ठीक है, no problem. Are you there? Yes, Yes, sir. Okay. Yes, Yes, So sir. ये these results are valid for the solid conducting sphere also. Shell कुछ भी हो सकती है, shell can be both. It can be conducting, non-conducting. Thin shell है तो non-conducting, conducting doesn't make any difference. Charge should be uniformly distributed. Conducting है तो अपने आप uniformly distribute हो जाता है. Non-conducting है, सपोज इट इज मेड प्लास्टिक बॉल है, सपोज है ना, टेनिस की बॉल, वो जो बॉल प्लास्टिक की बॉल से खेलते हैं, नॉन कंडक्टिंग है तो उसको यूनिफॉर्मली चार्ज कराना पड़ेगा। इफ इट इज मेटालिक तो अपने आप यूनिफॉर्मली चार्ज हो जाता है। तो यू हैव टू रिमेम्बर दैट थिंग। तो शेल कैन बी, जो ऊपर के जो रिजल्ट है यहाँ पे हमने मेंशन नहीं किया, इट इज बोथ कंडक्टिंग एंड नॉन कंडक्टिंग, ठीक है। कंडक्टिंग, ऑलराइट, दोनों है। नाउ same results, all the above results including graph, valid for the solid conducting spheres because any extra charge given will come to the surface. Surface पे आ जाएगा, कोई भी चार्ज देंगे ना अंदर, surface पे आ जाएगा, तो it will behave like a shell. ठीक है, ऐसा हमने फील्ड के लिए भी लिखा था, फील्ड ड्यू टू शेल था ना, तो उसके लास्ट में सेम कंक्लूजन ड्रॉ किया था। Shell can be conducting or non-conducting, and all the above results are valid for the conducting sphere, conducting solid sphere, because any extra charge given will be coming to the surface. Shell means hollow sphere, अंदर 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 से hollow है, shell का मतलब ये होता है। Done? No problem so far. You can ask your doubt. Just I am waiting for your doubt if it is there. तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ये डेरिवेशंस नॉट इन एनसीईआरटी बुक है ना, इसीलिए मैंने क्वेश्चन के फॉर्म में पूछा। तो चांसेस आर देयर डेरिवेशन नहीं आता है इसका, पूछा नहीं जाता है इसका, ठीक है। तो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट द डेरिवेशंस। देखो इसका ये क्वेश्चन है, if potential on the important question है, this is for boards and JEE and NEET,
all three places. देखो क्वेश्चन ये है, if potential on the surface of the charged shell of radius 2 meter is 10 volt, then find potential at the points center of the shell, at surface, नहीं, at distances 1 meter, 2 meter, 3 meter from the center of the shell. ठीक है, ओके, पहले पार्ट का आंसर क्या होगा? बोलो कितना है फर्स्ट पार्ट का आंसर? Sir, it will be 10 volt only. 10 volt. Sir, it will be 10 volt. सरफेस पे 10 कितना volt. दिया? 10 वोल्ट दिया, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट का 10 वोल्ट, सेंटर में 10 वोल्ट, और सेकंड में एट डिस्टेंस 1 मीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द शेल। 1 मीटर कितना, कहाँ पे होगा? इनसाइड और Inside. आउटसाइड? तो भैया टोटल Inside. कितना? 2 मीटर्स है। सेंटर में तो वी नो इनसाइड एवरीवेयर इट इज सेम, जितना सरफेस पे है तो एवरीवेयर इट बी 2 वोल्ट, वेदर इट इज सेंटर और मिडवे और नियर टू सर्कमफ्रेंस, है ना, anywhere it will be same. So 1 meter will be inside only, somewhere here, यहाँ पर या यहाँ पर 1 meter midway of the radius, कहीं भी हो सकता है। Being inside, potential should be same again, which is on the surface. तो 1 meter पे तो 10 volt आ गया, 2 meter पर 10 10 volt. or volt. 2 meter 10 10 volt. again volt. it happened to be surface again, तो surface पे 10 volt given ही है, तो उसको you don't have to worry much। ये वाला कैलकुलेट करना, 3 मीटर वाला यू इट इज इन द होमवर्क, इसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन करना पड़ेगा फॉर्मूला लगा के, ठीक है। और ऑलराइट, डोंट राइट सेंटर में 0, स्टिल आई एम वार्निंग यू, सेंटर में 0 नहीं होता है, जितना सरफेस पे होता है उतना सेंटर में होगा, उतना मिडवे पे होगा, उतना नियर टू द सर्कमफ्रेंस, एवरीवेयर सेम। So you have just direct result, you can use it, you don't have to prove it how it is, already we have done it, ठीक है। ये 3 मीटर वाला होमवर्क में करके भेजो उसको। तो 3 पॉइंट्स के लिए तो हमें कैलकुलेशन ही नहीं करना पड़ा, all happen to be inside or on the surface, 4th point is outside, you have to think about that and do it, ठीक है। So no problem, this is very important question, I am telling you again. Convinced? ओके, देखते हैं। तो ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं करते, जस्ट ओरली यू टेल मी द आंसर। यहाँ पे आई वांट टू क्लैरिफाई दैट पॉइंट्स टू यू, जैसे ये लेट अस रीड द क्वेश्चन फर्स्ट, देन आई विल क्लियर योर पॉइंट। A Rafer diagram in which potential on the surfaces of two concentric spherical conducting shells, spherical word ठीक है, मैं रिमूव कर रहा हूँ, they are visible as spherical, तो उसको लिखने की जरूरत नहीं। Two conducting shell are shown, find net potential at center on the surface of inner shell, ठीक है, and other points can also be there। तो देखो एक डाउट ये आएगा, these are the shells है ना, concentric shells, ये छोटा शेल है, ये बड़ा शेल है, तो तुम्हें डाउट ये आ सकता है कि इसका 10 वोल्ट, will it be up to here 10 वोल्ट और inside also, यहाँ भी आएगा उसका इफेक्ट। तो आंसर इज यस, effect comes up to everywhere inside,
यहाँ पे बीच में कंडक्टर है, तो उसके अंदर पोटेंशियल में बी चेंजिंग स्लाइटली, बट हियर इज द एयर और वैक्यूम, हियर इज द एयर और वैक्यूम। तो फील्ड, इसकी जो फील्ड लाइंस होंगी तो क्रॉस होके, इसको क्रॉस होके फिर अंदर आ जाती है, whether it is conducting or non-conducting. तो फील्ड लाइंस कैन क्रॉस बोथ द मटेरियल, कंडक्टिंग को भी क्रॉस करके आ जाती है फील्ड लाइंस, नॉन कंडक्टिंग को भी क्रॉस करके दे विल बी कमिंग, penetrating in and passing to the other side. Field lines can cross. अभी you may ask कि सर फील्ड लाइंस तो जीरो होंगी अंदर, ऑफ कोर्स नेट फील्ड इज जीरो, अदरवाइज फील्ड लाइंस विल बी देयर। इस यहाँ पे छोटा, इस ये चार्ज शेल है, देयर मस्ट बी सम चार्जेस थ्रू आउट, तो उसकी फील्ड लाइंस ऐसे भी जाएंगी, ऐसे भी जाएंगी, ऐसे भी जाएंगी, ऐसे भी जाएंगी, तो फील्ड लाइंस कम्स इनसाइड, बट दूसरी फील्ड लाइंस भी रहेंगी, वो उसको कैंसिल कर देती, नेट फील्ड बिकम जीरो इनसाइड। इट इज नॉट कि फील्ड अंदर है ही नहीं, फील्ड इज देयर, charges will produce three-dimensional field and which can penetrate through the metal and non-metal surfaces. Penetrate करके फिर से वो air में आएंगी field lines, they will be same again, but whenever they are inside the conductor, then net field may be zero because of the free charges inside, or if it is non-conductor, then field lines will decrease inside, will not be zero, but will decrease. But again, when they come to the air or vacuum, they are again same as they were. तो यहाँ पर पोटेंशियल रहेगा. Now we can say सेंटर में कितना पोटेंशियल होगा बोलो. Now you can reply easily. I have explained your doubts जो आ सकते थे. सेंटर में कितना पोटेंशियल होगा? 50. इसका भी रहेगा पूरा 5, इसका भी पूरा रहेगा 10, तो 15 हो जाएगा सेंटर में. ठीक है. और इसके सरफेस पर, ऑन द सरफेस पर जो इसका 5 है और इसका 10 है थ्रू आउट इनसाइड, तो 10 अगेन सरफेस पर 10 हो जाएगा, सॉरी 10 + 5 15 हो जाएगा. ठीक है. तो ये जस्ट यू कैन अंडरस्टैंड. और यहाँ पर कितना होगा इन द गैप बिटवीन द टू शेल्स? कैन यू प्रेडिक्ट हाउ मच इट विल बी देयर? ग्रेटर देन एंड लेस देन के टर्म्स में बता सकते हैं. इट इज ग्रेटर देन, लेस देन. देखो इसका जो 10 वोल्ट पूरा ही है, दिस आउटर शेल का, तो इट स्टिल इट इज इनसाइड पॉइंट, ये 10 वोल्ट रहेगा. इसका कम हो जाएगा व्हेन यू गो आउट अवे फ्रॉम द सरफेस, तो फार्मूला KQ/R लगता है ना, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R, डिक्रीज हो जाएगा. तो ये लेस देन 5 हो जाएगा. तो लेस देन 15, मोर देन 10, ग्रेटर देन 10, गैप में जो है लेस देन 15. यहाँ पर अगर हमें डिस्टेंसेस पता है तो वी कैन फाइंड आउट. कैलकुलेट करने का मैंने ये 4th पार्ट दिया है, आउटसाइड कैलकुलेट करने का. आउटसाइड यहाँ पे कहीं पे आएगा 3 मीटर, तो यू कैन डू इट. तो इसमें भी डिस्टेंस दी होंगी, तो यू कैन डू इट इजिली. कितने डिस्टेंस है ये, रेडियस कितना है, ये कितना है, तो यू कैन डू इट. बट सर्टन थिंग यहाँ पर, व्हेन इसका जो बाहर का जो पॉइंट होगा, इट विल बी लेस देन 5, और इसका 10 वोल्ट के बाहर के पॉइंट में लेस देन 10. इफ यू आर हियर, इट विल बी डिक्रीजिंग लेस देन. इन दोनों का जो सम है, यहाँ पर कितना होगा? यहाँ पर इसका 10 वोल्ट तो पूरा रहेगा, और इसका जो है कम हो जाएगा, लेस देन 5. तो ग्रेटर देन 10 वोल्ट एंड ग्रेटर देन 10 वोल्ट एंड लेस देन 15. वो डिस्टेंस दी होंगी तो हम एक्यूरेट निकाल सकते हैं. यहाँ का भी 10 से ज्यादा है और 15 से कम है. यहाँ पे 15 है, यहाँ पे सब जगह 15 होगा अप टू ईयर. यहाँ से लेकर यहाँ तक 15 वोल्ट रहेगा, और उसके बाद लेस देन 15 हो जाएगा, और देन इट विल डिक्रीज. क्लियर? लिसन अगेन, जिनको डाउट है अभी. सेंटर में दोनों का रहेगा 5 + 10 15 हो गया. सरफेस पर इसका पूरा रहेगा 5, और इसका 10 अंदर सब जगह 10 वोल्ट है ना थ्रू आउट, तो 5 + 10 वोल्ट, तो 15. इसके सरफेस पर 15 है, इसके सरफेस पे कम हो जाएगा, बिकॉज इसका जो 5 है इट इज आउटसाइड नाउ. इट विल स्टार्ट डिक्रीजिंग मोमेंट यू गो अवे फ्रॉम द सरफेस.
यहाँ पे 5 रहेगा, यहाँ पे कम हो जाएगा, मे बी 4, मे बी 3, मे बी 2, like this, depending upon the distance. So when you move away from the surface, it is inversely proportional to r, and in other words, it is decreasing. ये देखो, v inversely proportional to r. तो उसके लिए मैंने एक क्वेश्चन दे दिया है ये वाला, बाहर निकालने का। तो ऐसे ही इसमें भी अगर बाहर पॉइंट पूछेंगे तो डिस्टेंस से, सेंटर से डिस्टेंस लेके बाहर का कैलकुलेट कर लेंगे, फिर ऐड कर देंगे दोनों का। बट फिलहाल उसका नहीं पूछा मैंने। दिस मच इज इनफ। जस्ट विल वाइंड अप इन 2 minutes। देखो, एक तो ये क्वेश्चन है होमवर्क में, दिस इज गुड क्वेश्चन। टुमारो वी आर गोइंग टू डिस्कस, यू गो थ्रू, ट्राई योर लेवल बेस्ट, and we will discuss tomorrow. Question number 20. Noted? Number note कर लो उसका। Okay. तो बस इसमें ये पॉइंट कर, just let me ask you, this is find the potential at point P, axial point, at distance x, due to charge ring। ये चार्ज रिंग है, यूनिफॉर्मली और नॉन यूनिफॉर्मली, दोनों के लिए सेम आंसर होगा। whether it is uniform or non uniform, answer will not change। तो देखो, स्केलर क्वांटिटी है, देयर इज नो प्रॉब्लम, है ना। डायरेक्शन का प्रॉब्लम होता नहीं है, तो डायरेक्शन का प्रॉब्लम नहीं है, तो इट कैन बी वेरी इजीली डन। तो देखो, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कितनी होगी? दिस विल बी अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। एक्स इज द एक्सियल डिस्टेंस, आर इज द रेडियस। तो circumferences, all the points from the circumference are at equal distances, है ना। all the points are at equal distances, therefore we can directly write v is equal to k। या तो उसको छोटे छोटे चार्ज में ब्रेक कर लो, q1, q2, q3, है ना। छोटे छोटे चार्ज में ब्रेक कर लो उसको, और r, और ये ऐसे q1 प्लस q2 प्लस q3, दे आर ऑल गोइंग टू बी q ओनली। तो ये आंसर हो जाएगा। r इज द डिस्टेंस, इंक्लाइन डिस्टेंस जो है, जो कि हमने लिखा, तो इट इज k q by r। r इज, ओके, ऐसा लिख, एक मिनट जो, इट इज k q by r। r कितना है? अंडर रूट ऑफ r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, पावर 1/2 कर दिए। दिस इज r। आर यू एबल टू रीड इट? थोड़ा सा ठीक से लिख दो। r की वैल्यू पुट कर देंगे। अगेन दिस इज सेम एज द पॉइंट चार्ज, है ना। मतलब सर्कमफ्रेंस के सारे पॉइंट इकट्ठे होकर चार्जेस, सर्कमफ्रेंस से डिस्टेंस सेम है उसकी सभी पॉइंट्स, एक्सियल पॉइंट्स के लिए। इट विल बी r स्क्वायर प्लस स्मॉल r स्क्वायर टू द पावर 1/2। और सेंटर में कितना होगा फिर? सेंटर यहाँ पर होगा, x विल बी 0 एट सेंटर, फॉर सेंटर। तो यहाँ पर x, ओके, यहाँ पर x आएगा ना। हाय, पाइथागोरस थ्योरम से। तो x will be 0 at center, it will be k q by capital R। कैपिटल R दिया तो कैपिटल R के टर्म में लिखो। Okay, let me write it again। तो इसका भी we are just treating as a point charge। रिंग के सेंटर पर पॉइंट चार्ज जैसे ही फार्मूला आ रहा है, सेंटर पे ऑल द फ्रॉम ऑल साइड सर्कमफ्रेंस डिस्टेंस r है, और टोटल चार्ज q है। तो मैं नॉन यूनिफॉर्म इसलिए बोल रहा था, यू कलेक्ट ऑल द चार्ज, एक जगह कर दो पूरा, यहाँ पे ले आओ सारा चार्ज, एंड डिस्टेंस
तो समझ लो कि इट हैज बिकम पॉइंट चार्ज का वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो ब्रेक कर लो उसको Q1 Q2 Q3 Q4 में, और बाद में ऐड हो जाएगा तो Q मिल जाएगा। ठीक है, तो इट इज, यू कैन जस्ट write it easily, there is no problem in this. रिंग की फील्ड हमने नहीं की। फील्ड, डू यू नो हाउ मच इज द फील्ड एट द circumference at the axial point of the ring? It is not in our course, therefore we have not done it. Tomorrow I will tell you how to do. Vector quantity है ना, तो उसमें component लेने पड़ते हैं। तो if you are interested, you can derive the relation on your own by taking the components. ठीक है, tomorrow we are going to start the electrostatics of conductor and then capacitance. Capacitance पढ़ने वाले हैं कल। Shall I end it now? Anything you want to clarify? बोलो जल्दी से। Are you there or not? Yes, sir, you're audible. Okay. Yes, sir, you're audible. End कर दो सर। Sir, just a minute.